So good morning again. Some more questions. We did up to 14 questions. We did, huh? Yes. So we'll start with 15 question. If theta is an acute angle. If theta is an acute angle. an acute angle. acute angle And tan theta. and Tan theta tan theta is equal to 8 by 15. 8 by 15. 15. Find the value of Find the value of the value of sec theta. sec Theta. number बोला करो भाई. नहीं नंबर नहीं है. Sec theta only. Sec theta plus cosec theta. Sec theta plus Cosec theta. cosec theta. देखो, this question is also same as the questions we already did, right? But again, as we are starting this session, this part, so we are taking up this question. So theta is an acute angle, and theta is an acute angle. So we'll suppose that this will be a 90. This will be a right angle triangle. So solutions शुरू करते हैं. Tan theta is equal to 8 upon 15. We know that tan theta is already written as perpendicular upon On base. base. ये याद कर लो. बहुत सारी कहानी लोग बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है लेटर याद करना ज्यादा आसान है. बहुत सारी स्टोरी बताएंगे इसमें अलग अलग टीचर्स. सो सिंपल सा है. P अपॉन बी इज इक्वल टू, P क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर. अगर थीटा हमारा BC एक्यूट है. एंगल है तो इसके रेफरेंस में BC. BC will be perpendicular upon base. AB. Base will be AB. Right. So this is a ratio of BC and AB. So we'll suppose that let BC is equal to 8x and AB is equal to हो जाएगा 15x. Right? तो ये दोनों आ गए. अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC using P theorem. So again AC square is equal to AB square plus BC square. हमें AB और BC मालूम है तो AC स्क्वायर निकालना. AB कितना है? AB हमारा 15x का होल स्क्वायर और BC है हमारा 8x का होल स्क्वायर. That gives you 289x square. 225x Plus square plus 64x square. 64x square. That gives you 289. x square. 289 17x. x square. 17 289 होता आज भी हमको याद है. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 स्क्वायर इक्वल, और अगर इसको रूट ले लेंगे तो 17x आ जाएगा. तो AC कितना आ जाएगा? 17x. BC कितना है? 8x. और AB कितना है? 15x. Now we have to calculate the value of sec theta plus cosec theta. We should write sec theta कितना है? Perpendicular upon base. Sec theta क्या है? Hypotenuse upon base. Hypotenuse कितना है यहाँ पे? हम डायरेक्ट लिख लेते हैं AC upon hypotenuse upon base. Base कितना है? 15. AB. और प्लस cosec theta कितना है? Hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse again AC upon perpendicular. Perpendicular is it? Perpendicular is 8x मतलब BC. BC. AC की वैल्यू क्या है? 17x. अपॉन AB की वैल्यू क्या है? 15x. और प्लस AC अगेन 17x और अपॉन 8x. क्लियर? हाँ. तो आगे चलते हैं. LCM. LCM निकालो भैया, कितना आएगा? पहले तो x कैंसिल कर देते हैं. AC इज इक्वल टू LCM कितना आ जाएगा? 15 8 120 होता है. 120. और 17 8 136 x और प्लस 136. 15. नीचे भी तो x लिख लीजिए फिर. कहाँ? नीचे हाँ नीचे भी x लिख काट ही देते ना वहाँ पे आप पूरा. हाँ ये तो काट ही दो, तो खत्म हो गया x का काम. भाई तो 272 बटे अरे इसका पहले ये बताओ ना कितना आएगा. क्या? 17 into 15.
255। क्या कर रहे हो बैठे हुए, इतना टाइम लगा रहे हो भाई? अरे मैंने वो उल्टा ही कर दिया था, मैंने दोनों को उससे 5 मल्टीप्लाई कर 11 दिया। का 1 हासिल 1 9 391 अपॉन 120। 1:2 कितना आएगा? 391 अपॉन कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, 360 हुआ। 3 टाइम्स जाएगा इसमें 360, बचेगा 31। कितना? दिस इज द आंसर एंड इज इट 16th क्वेश्चन। यही आ रहा होगा। हाँ 16th question given A is an acute angle. गिवन A is an acute angle. A is an Acute angle. acute angle Angle. And 13 sin A. and 13 sin 13 sin A A is equal to 5. 5 Evaluate evaluate 5 sin A minus 2 cos A. evaluate है हाँ evaluate 5 sin A minus 5 sin A minus 2 cos A 2 cos A upon upon tan A. tan A। You want me to do this again? चाहते हो तुम ये करूं क्वेश्चन में? हैं? कर दे? हाँ? वैसे तो आसान है, दिया क्या हुआ है? ए कह रहा है एंगल एक्यूट है, तो ए बी सी ऐसे कर लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 13 साइन ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/13. अगेन 5/13। साइन ए क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। डायरेक्टली लिया, ये बीसी अपॉन एसी का रेशियो है, तो बीसी क्या हो जाएगा? 5x एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी क्या हो जाएगा? 13x. 13x। ये हो जाएगा 13x हो गया। अब हम तीसरी साइड निकाल लें, तो BC को लिख लेते हैं 5x और AB इज 13x। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग P थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, BC है 5x का होल AB स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है बाबा। हैं? हाइपोटेन्यूज है हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x. अभी तक भांग खाए थे क्या? मैंने तो वही सॉल्व किया है। हाँ। चलो AC स्क्वायर कितना है? 13x स्क्वायर। BC कितना है? 69x स्क्वायर माइनस 25 दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 44 13 13 169 माइनस स्क्वायर 25 और माइनस 25x स्क्वायर। 12x. So AB square is equal to 144x square. This implies AB is equal to 12x. Clear? आगे? हमको निकालना है 5 sin A minus 2 cos A Yes. upon AB 10. हमारा आ गया। AB हमारा आ गया। ये हमें 13x हमने यहाँ बेकार लिखा है। AB हमारा आया 12x और ये हमारा ऑलरेडी 5x था। अब हम निकालते हैं जो हमें निकालना है। 5 sin A है। 5 sin A minus 2 cos A अपॉन क्या है? tan A. tan थीटा क्यों लिखवाया फिर? थीटा किसने बोला था? बोला होगा तभी लिखा होगा। ना अब 5 sin A, 5 इंटू sin A कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है, माइनस 2 इंटू कॉस ए। कॉस ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस AB है और हाइपोटेन्यूज AC है, अपॉन tan A क्या है? tan A इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन
ए बी। क्लियर? अब वैल्यूज डाल देते हैं भैया। 5 इंटू बी सी अपॉन ए सी, 5x अपॉन ए सी 13x, माइनस 2 इंटू ए बी है 12x अपॉन ए सी 13x, अपॉन बी सी कितना है 5x, अपॉन ए बी कितना है 12x। x तो सब साफ हो जाएंगे। क्लियर? अब हम रेसिप्रोकल कर दें बस। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये क्या है हमारा 12/65 आएगा। ये हमारा 13 तो वो हो जाएगा, वो कॉमन एलसीएम। तो यहाँ पे 2 इंटू 12 हो जाएगा, मतलब इसको डायरेक्ट ही लिख लें फिर। सॉरी 12 इंटू 2 इंटू 12 भाई 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 और माइनस 24 24, 12 दूनी और 13 हमारा क्या है एलसीएम। नीचे क्या है, नीचे 5 अपॉन 12 भाई है। अब हमारा क्या हो जाएगा 1, रेसिप्रोकल कर ले, 12 ऊपर चला जाएगा, 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 12 एंड 13 इंटू 5, 12 अपॉन 12 अपॉन 65 आ गया। ए बी कितना आ गया, नहीं ए बी क्या, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन 65। ठीक है, यही आ रही। सो दिस इज 16th क्वेश्चन। कितना हो गया टाइम 12 minutes 12 17 जरा बताओ भैया। given is an acute angle। एक मिनट, एक्सरसाइज नहीं लिखी हमने, एक्सरसाइज डाल देते हैं, क्या परेशानी। कितने मिनट हुए 13 हो गए होंगे तो। आज क्या बात है, मिट नहीं रहा आराम से। चलो 17 एक्सरसाइज कौन सी है 16 हाँ बताओ 17th क्वेश्चन। given is an acute angle गिवन A is an acute angle acute angle angle and cosec A is equal to and cosec A is equal to cosec A is equal to √2 √2। find the value of Find the value of value of of 2 sin square A 2 plus sin square A square A plus plus 3 cot square A 3 cot square A square A upon tan square A minus क्या tan square A minus। ऊपर आपने A लिखा है वो अजीब लग रहा है थोड़ा सा, वो सही कर दीजिएगा। tan square A minus cot square A cos square tan square A minus cos square A cot square A cos cos square A। ए, ठीक है, हाँ ये कर लोगे, हाँ छोड़ दें हाँ। हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं भाई। अरे इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन वो कर लेंगे परपेंडिकुलर, उससे आ जाएगा √2x और ये आ जाएगा x। भाई कॉसेक ये दिया हुआ है इज इक्वल टू √2 दिया हुआ, √2 का मतलब √2 अपॉन 1। x ठीक है, और कॉसेक की वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अगर वही हम ट्राइंगल ले लें ए बी सी, तो ए हमारा एक्यूट एंगल है और सारे ए से रिलेटेड एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, तो ये ए सी और बी सी का हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा x स्क्वायर √2x एंड बी सी अच्छा, क्या हो जाएगा x। लेट करेंगे ना, हाँ और इसके बाद वही पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको छोड़ देते हैं, कमेंट करो जरा इसका सॉल्यूशन मुझे, ठीक है।
ये वाला थोड़ा सा समझ में आया नहीं वैसे। कौन सा? यही यही वाला ए भी एक्स आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो भाई कर देते हैं तुरंत, 2 मिनट लगेगा। ए भी एक्स आ रहा है, मतलब बात ये है। रुक जाओ देखते हैं। आपने बी एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा टाइम दे दो भाई। बी सी इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, BC इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, सारी कहानी आ गया। वही इन ट्रायंगल ABC बाई पी P थ्योरम कर ही देते हैं भाई। क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर। BC स्क्वायर। ठीक, हाँ, AC स्क्वायर कितना है? √2 एक्स स्क्वायर। AB कितना है ए बी निकालना है। BC कितना है? एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ए बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर। इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर हम्म, और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू एंड दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू एक्स। x आ गया। AB कितना आ गया? x। BC कितना था? x और ये कितना था? √2x। ठीक है, ठीक तो- है, इसके आगे हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है ये। हाँ, तो इसके आगे भी सॉल्व कर देते हैं, जब यहाँ तक किया है तो कहाँ से हो जाएगा जब ये नहीं। नहीं यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था। हाँ। ये कंफ्यूजन था कि सेम आ गया नंबर। सेम आ गया तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ओके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आइसोसेलेस भी है और उसमें राइट एंगल भी है। राइट एंगल भी है। कंप्लीट ही कर देते हैं भाई। चलो करो। मैं आगे बढ़ गया। कौन सा? इसी में 2 साइन स्क्वायर है तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख लेते हैं 2 इंटू साइन ए। साइन ए कितना है? साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉट। कॉट स्क्वायर ए क्या है भैया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। AB अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC हो गया। नीचे tan स्क्वायर क्या है? tan स्क्वायर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC का होल स्क्वायर। चलो 2 इंटू BC कितना है भैया? X। AC कितना है? √2x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू AB कितना है? X अपॉन BC कितना है? X। X अपॉन X का होल स्क्वायर 6 आ रहा है AB मेरा। अपॉन BC। ठीक, अब ये आ गया हमारा। BC कितना है? X अपॉन AB कितना है? X का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ही है, कॉस स्क्वायर है AB कितना है? X अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो x सब कट रहे जा रहे हैं, x सब कट जा रहे हैं। तो 2 इंटू √2 तो 2 ही हो 2 जाएगा, इंटू तो 1 2 अपॉन तो 2 कटेगा। प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। 2 कैंसिल, 4 अपॉन 2 एकम 2, हाफ बचेगा 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा। आंसर इज
6. आंसर इज 8. सॉरी, 8 आएगा। 2 ऊपर जाएगा ना. हाँ भाई। 4 into 2 upon 1 is equal to 8. This is how we solve 17th question. Thank you.